والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والإحكام والمحبة والإحسان والجنة والبرهان على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأدمي الحاشمي على سيدنا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ادعو محمد اللهم صل على محمد عزیزان محترم، بزرگان ملت و خطاب عزیز، ہم مسلسل مجلس حسین کر رہے ہیں. جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا، ہر شیعہ کے گھر میں فرش ہدایہ حسین بچھنے لگا، ہر انسان مجلس حسین کرنے لگا. عزیزان محترم، ہم حسین پہ جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا ہم گریہ کر رہے ہیں، حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اس سال جب سے چاند نمودار ہوا ہم حسین پہ گریہ کر رہے ہیں. جو سال گزر گیا ہماری زندگی کا، ہم نے ہر سال محرم پہ گریہ کیا، حسین پہ گریہ کیا، ماتم کیا، نماز پڑھا، مرثیہ پڑھا، مجلس کیا. عزیزان محترم، کیا ہم نے حسین پہ رونے کا حق ادا کر دیا؟ ہم نے مثال کے طور پر اتنے بڑے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کم عمر ہے، تقریباً 10 سال لے لیجیے، 9 سال لے لیجیے. کیا انہوں نے 9 سال 10 سال حسین پہ گریہ کیا، ماتم کیا؟ کیا انہوں نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا. دادا جان بیٹھی ہوئی ان کی عمر زیادہ ہے، کیا انہوں نے حسین پہ گریہ کرنے کا حق ادا کیا؟ عزیزان محترم، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسین پہ گریہ کرنے کا حق ادا کر سکے. کیسے پتا چلے؟ عزیزان محترم، ہم حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، مسلسل حسین پہ اشک بہا رہے ہیں، مجلس حسین کر رہے ہیں، لیکن ہم نے حسین پہ گریہ کرنے کا حق ادا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ عزیزان محترم، دنیا سوال کر کے آپ حسین پہ مسلسل رو رہے ہیں، حسین کا ماتم کر رہے ہیں. عزیزان محترم، جو ہم نے حسین کا حق ادا نہیں کیا، ہماری زندگی گزر جاتی ہے، انسان رو کر مر جاتا ہے. حسین کی مجلسوں میں انسان رو کر مر جاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے مر جاتا ہے، مجلس حسین کرتے کرتے مر جاتا ہے، لیکن حسین کا حق ادا نہیں کرتا. عزیزان محترم، جب حق ادا نہیں کرتا تو مجلس حسین کر کیوں رہا ہے؟ ایک درود پڑھیں محمد والے جب حق ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر مجلس حسین کر کیوں رہا ہے؟ عزیزان محترم، دلیل دوں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. جب جناب یوسف کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا تو وہاں پہ بڑے سے بڑے لوگ آئے تھے جناب یوسف کو خریدنے کے لیے. یہاں تک کہ جو بادشاہ مصر تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بھی آیا تھا جناب یوسف کو خریدنے کے لیے. عزیزان محترم، انہی کے درمیان ایک ضعیفہ تھی جو چند جواہرات کو لے کر آئی تھی جناب یوسف کو خریدنے کے لیے. ایک مرتبہ ایک شخص سے کہتا ہے، ضعیفہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ بادشاہ مصر آئے ہیں جناب یوسف کو خریدنے کے لیے؟ کہا مجھے پتا ہے. جب پتا ہے، وہ شخص کہتا ہے، ضعیفہ جب پتا ہے تو تو اتنے کم درہم لے کر کیوں آئی ہے؟ کہا سن، میں یوسف کو خریدنے کے لیے نہیں آئی ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں اتنے درہموں میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن آئی اس لیے ہوں تاکہ خریداروں میں میرا نام شمار ہو جائے. محترم، اسی لیے ہم حسین پہ روتے ہیں. ہم حق ادا نہیں کر سکتے، حسین پہ گریہ کرنے کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن روتے اس لیے ہیں تاکہ خریداروں میں ہمارا نام شمار ہو جائے. ہم حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ ہمارا نام عزاداروں میں شمار ہو، حسین کے غمخاروں میں شمار ہو. عزیزان محترم، میں نے
جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ابراہیم ہم نے تمہیں امتحانوں میں کامیاب پایا تو ہم نے تمہیں درجہ امامت پر قرار دیا۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں درود پڑھ کر محمد والے محمد پر یہ جو فرش عزا پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عزیزان محترم یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا فرش عزا۔ فرش عزا کی عظمت یہ ہے کہ جہاں پہ 1,24,000 انبیاء آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ فرش عزا کی فضیلت یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء آ کر بیٹھتے ہیں۔ عزیزان محترم بہت بڑی نعمت ہے فرش عزا پر بیٹھنا، ہر کسی کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں نازل کی ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں نازل کی ہے۔ یہ ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، پانی ہمارے لیے نعمت ہے، یہ روشنی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اللہ نے بہت سی نعمتیں ہمارے لیے نازل کی، لیکن انسان اگر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو شکر ادا نہیں کر سکتا ان نعمتوں کا۔ اللہ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، ان نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے ذات محمدی۔ اللہ نے محمد کو ہم جیسے لوگوں کے درمیان میں بھیجا۔ پروردگار کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہاری نجس محفل میں ابو طاہر کو بھیجا۔ بہت توجہ میرے ابھی کو، پروردگار کہہ رہا میں نے تمہاری نجس محفل میں ابو طاہر کو بھیجا۔ آپ دیکھیں پورا قرآن اٹھا کر پورے قرآن میں کہیں بھی نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ پورے قرآن میں کہیں پر بھی نبی کے پیدا ہونے کا تذکرہ نہیں ہے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے درود پڑھ کر محمد والے محمد پر پروردگار کہہ رہا ہے والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کہ اے رسول میں نے آپ کو مبعوث کیا۔ عزیزان محترم قرآن میں مبعوث کا ذکر آیا ہے، پیدا ہونے کا ذکر نہیں آیا۔ مبعوث ہونا اور بات ہے، مبعوث کرنا اور بات ہے، پیدا ہونا اور بات ہے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نبی کے پیدا ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ عزیزان محترم ایک وجہ ہے ہماری یہاں روایتوں ملتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا۔ جب اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خلق کیا تو بھیجا سب سے بعد میں کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ عزیزان محترم آپ دیکھیں اللہ کو وجہ کیا تھی کہ اللہ نبیوں کو بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کا سلسلہ رکھا، نبیوں کے بعد امامت کا سلسلہ رکھا۔ آپ دیکھیں ایک بچہ اگر کسی جنگل میں پیدا ہو جائے اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی جائے، بتائیے اس بچوں کو نام کی ضرورت ہے؟ اس جنگل میں کوئی ہے نہیں اس بچے کے علاوہ، بچہ دھیرے دھیرے پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم کیا اس بچوں کو نام کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اسے کوئی پکارنے والا نہیں ہے۔ جب کوئی پکارنے والا ہوگا تب اسے نام کی ضرورت پڑے گی، جب تک کوئی پکارنے والا نہیں ہوگا کسی کو نام کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزیزان محترم پروردگار تو تھا لیکن اسے کوئی پکارنے والا نہیں تھا۔ اللہ معبود تو تھا لیکن ابھی تک کسی نے اس کی عبادت نہیں کی تو معبود کیسے کہلاتا؟ پروردگار عالم مسجود تو تھا لیکن ابھی تک کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا تو مسجود کیسے کہلاتا؟ پروردگار رازق تو تھا لیکن ابھی تک کسی نے ابھی تک رزق نہیں پیدا کیا تھا تو رازق کیسے کہلاتا؟ عزیزان محترم اب پروردگار عالم نے دیکھا کہ میں معبود تو ہوں، میں مسجود تو ہوں لیکن مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم جیسے ہی پروردگار عالم نے دیکھا کہ میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں مسجود ہوں، میں معبود ہوں لیکن مجھے کوئی کہنے والا نہیں ہے، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا کن تو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا ہے۔ درود پڑھ کر محمد والے محترم اللہ نے پروردگار عالم نے محمد کو کیوں خلق کیا؟ تاکہ پروردگار عالم اپنے آپ کو پہچانوا سکے۔ عزیزان محترم پہچاننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو چہرے کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر خود کو پہچاننا ہے تو شیشے کے سامنے آتے ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ پروردگار عالم نے محمد کو خلق کیا، کیسا بنایا؟ اپنے جیسا بنایا۔ پروردگار نے کہا دیکھو محمد کے کمالات کو دیکھو اور میرے کرم کا اندازہ لگاؤ، محمد کی معرفت کرو اور میرے فضل کو پہچانو۔ عزیزان محترم نام کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کسی کو پہچانا جائے۔ اللہ معبود تھا لیکن ابھی تک کسی نے عبادت نہیں کی تھی۔
परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को खल्क किया, मोहम्मद ने सजदा किया, अल्लाह मसजूद कहलाया। मोहम्मद को खल्क किया, अल्लाह खालिक कहलाया। मोहम्मद ने रिज़्क़ खाया, अल्लाह राज़िक़ कहलाया। मोहम्मद ने इबादत की, अल्लाह माबूद कहलाया। अल्लाह मोहम्मद वो है जो पैदा होकर अल्लाह के नाम पैदा कर रहा है। मोहम्मद वो है जो पैदा होकर अल्लाह के नाम पैदा कर रहा है। और आज का मुसलमान कहता है कि मोहम्मद हम जैसे हैं। ये दोनों बराबर मोहम्मद वाले मोहतरम, ये नादान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे हैं? एक मिसाल दे दूं, बात हो जाए कि ये नादान, ये लोग क्यों कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, माशाअल्लाह हमारे मदरसे में इतने बच्चे हैं, कोई शहर से आया है, कोई गांव से आया है। जो गांव से आया है वो गांव की ज़बान जानता है। गांव वालों ने भेजा, घर वालों ने भेजा, जाओ मदरसे में जाओ, जाने के बाद उर्दू पढ़ो, कुछ तालीम हासिल करो। अज़ीज़ान मोहतरम, वो बच्चा मदरसे में आया, आने के बाद उर्दू पढ़ना शुरू कर दिए। अब मदरसे में पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते जब यहाँ से फारिग हुआ तो मौलाना ने क्या सोचा कि यहाँ से फारिग हो गया है, इन्हें ईरान भेजा जाए। बहुत तवज्जो मेरे दोस्तों, बहुत तवज्जो मेरे दोस्तों। बच्चा घर पे जानता, गाँव की ज़बान जानता था, मदरसे में आया, उर्दू जानने लगा। मौलाना ने देखा कि यहाँ से फारिग हो गया, इन्हें ईरान भेजा जाए। अब ईरान गया, ईरान जाने के बाद फारसी सीखी। फारसी सीखने के बाद उसने सोचा अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म का खजाना बहुत जगह है, नजफ में है, में है, ईरान में है, हर जगह इल्म पाया जाता है। अब उसने सोचा कि ईरान में मैं कुछ साल रह चुका हूँ, ईरान की पढ़ाई करनी, अब नजफ चलते हैं। नजफ में अरबी बोली जाती है, नजफ में अरबी बोली जाती है, ईरान में फारसी बोली जाती है, मदरसे में उर्दू बोली जा रही थी। अब उसने तीनों जबान सीख ली। बहुत तवज्जो में रहती, तो अब उसने तीनों जबान सीख ली। अब जब ईरान से पढ़कर वापसी में घर आने लगा तो उसने सोचा कुछ इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं ताकि सरकारी नौकरी लग जाए। बहुत तवज्जो में रहती, तो अब पढ़ने के बाद यहाँ तक काबिल हुआ कि वकील बन गया। वकील बनने के बाद गाँव में आया। अब जैसे ही गाँव में आया, लोगों को पता चला कि हमारे गाँव का बच्चा जो पढ़ने के लिए गया था कुछ साल पहले, आज वकील बन कर आया है, मौलाना बन कर आया है। अब लोग मिलने के लिए आए। अब यानी मतलब वकील था, वकील के पास एक से एक केस आते हैं। हर कोई वकील के पास किसी ना किसी तरीके का केस लेकर आता है। अब जैसे ही गांव के लोग आए, अब उस बच्चे ने देखा, अब वो बच्चा नहीं था, वो मौलाना हो गया था, बड़ा हो गया था काफी। अब उस शख्स ने देखा अगर मैं इनसे फारसी बात करूं तो इन्हें समझ नहीं आएगी। बहुत तवज्जो में रखिए। अगर मैं इनसे अरबी में बात करूं तो इन्हें समझ नहीं आएगी। अगर मैं इनसे इंग्लिश में बात करूं तो इन्हें समझ नहीं आएगी। लिहाजा ये गांव के इनसे गांव की ज़बान में गुफ्तगू करता हूँ। अभी ये गांव की ज़बान में गुफ्तगू करी रहे थे, इतने में एक ईरानी आ गया। ईरानी आया, आने के बाद अब उसने देखा, उस मौलाना ने देखा कि अगर मैं इनसे अपनी ज़बान की गुफ्तगू करी गाँव की ज़बान में तो इन्हें समझ नहीं आएगी, इनसे फारसी में गुफ्तगू करता हूँ। अब फारसी में गुफ्तगू शुरू कर दी। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी ये दोनों बात करके बाहर निकले थे, एक मर्तबा एक अरबी आया, आने के बाद अरबी में गुफ्तगू शुरू कर दी। अब ये जब बाहर निकला तो ईरानी कहता है कि वो मेरे जैसे है, ईरानी कहता है वो मेरे जैसे है, अरबी कहता है वो मेरे जैसे है। जो गाँव का इंसान था वो कह रहा है मेरे जैसे। बहुत तवज्जो में रखिए, हर एक शख्स कह रहा है मेरे जैसे हैं। यहाँ तक के लोग आपस में वैसी वैसा करने लगे, झगड़ा करने लगे, ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा है, ये मेरे जैसा है। एक मरतबा वो मौलाना घर से बाहर निकले और बाहर निकल कर कहते देखो ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ, ना तुम्हारे जैसा हूँ, ना तुम्हारे जैसा हूँ, बल्कि तुम्हारे जैसा बन बैठा ताकि मेरी बात तुम तक चली जाए। दुरूद पढ़ो। ना मैं तुम्हारे जैसा हूँ, ना तुम्हारे जैसा हूँ, बल्कि तुम जैसा बन बैठा ताकि तुम्हारी बात, ताकि मेरी बात तुम तक पहुंच जाए, तुम्हें समझ में आ जाए। अगर मैं अपनी काबिलियत दिखाने पर आया था तो तुम खाक समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरीके से नबी हम जैसे नहीं थे, बल्कि वो हम जैसे बन बैठे ताकि उनकी बात हम तक पहुँच जाए कि परवरदिगार आलम हमसे कहना क्या चाहता है। आज दुनिया के मुसलमान क्यों कहते हैं कि मोहम्मद हम जैसे हैं? यही वजह है कि मोहम्मद ने जो गुफ्तगू की हम जैसे की। ये दुरूद पढ़कर मोहम्मद वाले मोहतरम वक्त दो जुमले, उसके बाद रब्ते मसाइल और आपकी सहमत तमाम। परवरदिगार आलम ने
पूरे कुरान में अर्ज किया कि पूरे कुरान में कहीं भी नबी के पैदा होने का जिक्र नहीं है। एक सहाबी आया, आने के बाद कहता या रसूलुल्लाह आप कब पैदा हुए? नबी ने कहा अव्वला मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया। अब यानी मोहतरम सवाल ये है कि जब अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद के नूर को खल्क़ किया तो भेजा सबसे बाद में क्यों? अब यानी मोहतरम आप देखिए, इस वक्त हर गांव में कोई ना कोई प्रधान है, कोई ना कोई मंत्री है। जब भी कहीं कोई आता है तो आने से पहले इंतज़ाम किया जाता है। जितना बड़ा होता है इंतज़ाम उतना ज़्यादा किया जाता है। अभी जाने मोहतरम ज़रा सोचिए, जो नबियों का सरदार है उसे दुनिया में आना है, उसे कायनात में आना है, परवरदिगार ऐसे ही तो नहीं भेज देगा। अब अल्लाह ने मोहम्मद को भेजने के लिए ज़मीन को खल्क़ किया, ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान का सामियाना लगाया। अब मोहम्मद को भेजना चाहते हैं। अली जान मोहतरम, अब जैसे ही परवरदिगार ने चाहा कि मोहम्मद को ज़मीन में भेजे, क्या देखा कि ज़मीन में कोई ऐसा नहीं है जो मोहम्मद का इस्तकबाल कर सके, जो मोहम्मद का एहतराम कर सके। मोहम्मद को इस वीराने में हम नहीं भेजेंगे। परवरदिगार आलम ने आदम को खल्क़ किया। आदम को खल्क़ करने के बाद कहा आदम जाओ, और जाने के बाद ज़मीन को हमवार करो। कहा परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए कि मोहम्मद को भेजना है। अली जान मोहतरम, आदम आए, आने के बाद ज़मीन को हमवार किया। अब इंतज़ाम मुकम्मल ही होने वाला था कि एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया, ज़मीन पर खूने नाहक बह गया। परवरदिगार आलम ने कहा ऐ आदम आप वापस चले आए, इसलिए कि ज़मीन पर खूने नाहक बह चुका है। बहुत तवज्जो में लगी तो मोहम्मद ऐ आदम ज़मीन पर खूने नाहक बह चुका है, आप वापस आ जाए। जनाबे आदम वापस आए, नूह को खल्क़ किया। जाओ नूह, जाने के बाद ज़मीन को साफ करो। बहुत तवज्जो में लगी तो अब जनाबे नूह आए, आने के बाद ज़मीन को साफ किया, धोया, ज़मीन को साफ किया। अली जान मोहतरम इस तरीके से साफ किया कि सब कुछ साफ कर दिया। ना परिंदे, ना चरिंदे, ना दरख्त, ना शजर, कुछ भी नहीं रहा। एक मरतबा परवरदिगार आलम ने इब्राहिम को बुलाया, कहा इब्राहिम अब तुम जाओ, जाने के बाद ज़मीन को हमवार करो। हमवार करने के बाद इब्राहिम जाओ, जाने के बाद ज़मीन पर बाग बूटे लगाओ। लेकिन इब्राहिम याद रहे बाग ऐसा होना चाहिए, उसके बाद ऐसा बाग ना डाला सके। बहुत तवज्जो में रखिए। इब्राहिम आए, आने के बाद इब्राहिम ने बाग लगाया, और ऐसा बाग लगाया आपको गुलजार कर दिया। आज तक दुनिया में किसी ने वैसा बाग नहीं लगाया। अल्लाह ने कहा इब्राहिम हम तुम्हारे इस काम से खुश हुए, इब्राहिम जाओ, हमने तुम्हें इमामत का दर्जा अता किया। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बस अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इब्राहिम को दर्जा इमामत बरकरार दिया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, वैसे तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। कि इब्राहिम हमने तुम्हें इम्तिहानों में कामयाब पाया तो हमने आपको दर्जा इमामत पर करार दिया। यानी मोहतरम, इसका मतलब ये है कि इब्राहिम इमाम, शरीयत की सारी जिम्मेदारी इब्राहिम के ऊपर है। लेकिन इब्राहिम के पास न तख्त है, न ताज है, न लश्कर है, न सल्तनत है, न खजाने हैं, न वज़ीरे हैं, कुछ भी नहीं इब्राहिम के पास। सब कुछ किसके पास है? सब कुछ नमरूद के पास है। नमरूद के पास तख्त भी है, ताज भी है, लश्कर भी है, सल्तनत भी है, खजाने भी है, वज़ीरे भी हैं। बहुत इब्राहिम के पास कुछ भी नहीं, सब कुछ नमरूद के पास है। नमरूद के पास तख्त है, ताज है, लश्कर है, सल्तनत है, खजाने हैं, वज़ीरे हैं, सब कुछ नमरूद के पास है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब सब कुछ नमरूद के पास रहने के बावजूद इब्राहिम की इमामत में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो किसी के तख्ते खिलाफत पर बैठने से विलायत अली में फर्क कैसे पड़ सकता है? ये दुरूद पढ़ना मोहम्मद तो परवरदिगार आलम ने इब्राहिम को इम्तिहानों की वजह से दर्जे इमामत पर करार दिया। 3 इम्तिहान ऐसे हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने इब्राहिम को दर्जा इमामत पर करार दिया। पहला इम्तिहान माल का इम्तिहान, दूसरा इम्तिहान जान का इम्तिहान, और तीसरा इम्तिहान औलाद का इम्तिहान। अज़ीज़ान मोहतरम, औलाद का इम्तिहान कौन सा इम्तिहान था जिसे हम और आप ईद अज़हा के नाम से जानते हैं? जनाब इब्राहिम ने अपने बेटे
जनाब इस्माइल की कुर्बानी दी थी। मैदान मिना में लेकर गए थे, जाने के बाद बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए। अजीजों, जनाब इब्राहिम ने जब इस्माइल को ज़िबा करने के लिए गर्दन पे छुरी रखी तो इब्राहिम के हाथ काँप रहे थे। इब्राहिम ने कहा, इस्माइल ने कहा, बाबा जान आपके हाथ काँप रहे हैं, आप अपनी आंखों पे पट्टियाँ बांध लें और आप मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध लें। और ज़रा सोचिए, अल्लाह के नबी हैं, एक नबी अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, मंजर देख नहीं सका। ज़रा सोचिए, करबला के मैदान में हुसैन ने अपने कड़ियर जवान अली अकबर के बेटे से पर्ची किस तरह निकाली है। अज़ादारों, हम मुहर्रम जब से नमूदार हुआ, हम मुसलसल मजलिस हुसैन कर रहे हैं, हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, करबला के मैदान में रोज़े आशूर 72 शहीद की प्यास बुझ गई, मगर अज़ादारों सकीना आज भी प्यासी है, सकीना आज भी प्यासी है, ज़ैनब कुलसूम आज भी प्यासी है। अज़ादारों, रवायतों में मिलता है कि अहले हरम का लुटा हुआ काफिला 29 या 30 मुहर्रम को वारिद शाम हुआ है, शाम के दरबार में पहुंचा है। अज़ादारों, आज मुहर्रम की 27 तारीख है, अभी अहले हरम का काफिला शाम के बाजार में नहीं पहुंचा। अज़ादारों, अभी शाम के पहले एक जगह थी जहाँ से एक मर्तबा हुसैन का सर नेज़े पे चल रहा है, नेज़े पे चल रहा है। सकीना को पुश्ते ऊँट पर बांधा गया, जकड़कर जैसे ही बांधा गया, अरे उस पुश्ते को सबसे पीछे रखा गया है, इसलिए कि सकीना को डर लगे, सकीना को सताया जा रहा है। अज़ादारों, एक मर्तबा ये काफिला चल रहा है, शाम के दरबार में पहुंचने ही वाला था, तो पहुंचने से पहले एक मर्तबा हुसैन का सर जिस नेज़े पे था, अरे वो नेज़ा खूनी के हाथ से छूटा, जमीन पर नस्ब हो गया। एक मर्तबा जब जैसे ही नस्ब होना था कि अब लहीनों ने चाहा कि नेज़े को उखाड़े और आगे बढ़ाए, एक मर्तबा नेज़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा खूनी शिवे के सज्जाद के पास आया, आने के बाद कहता है, ऐ सज्जाद, अरे अपने बाबा से कहो आगे बढ़े, वरना हम तुम्हें ताज़ियाना मारेंगे। अज़ादारों, एक मर्तबा सज्जाद कहते हैं, अरे बाबा, अरे सैयद सज्जाद ने वो ताब ना रही कि ताज़ियाना खाए, अरे बाबा आगे बढ़िए, इसलिए कि ताज़ियानों से मेरी पुश्ते जख्मी हो गई है, मुझमें वो ताब नहीं है कि मैं ज़ालिमों के ताज़ियाना खाऊं। एक मर्तबा कटे हुए सर से आवाज आई, ऐ बेटा सज्जाद, अरे काफिले से सकीना बिछड़ गई, ऐ सज्जाद, अरे काफिले में सकीना नहीं है, अरे मैं कैसे आगे बढ़ूं। अज़ादारों, जैसे ही सैयद सज्जाद ने ये सुना, एक मर्तबा ज़ैनब के पास आए, आने के बाद कहते हैं, फूफी अम्मा, अरे सकीना काफिले से बिछड़ गई। अज़ादारों, रवायत कहती है, एक मर्तबा ज़ैनब ढूंढने के लिए, सकीना को ढूंढने के लिए कुछ दूर गई, जाने के बाद क्या देखा, एक ज़ईफ़ा की गोद में सकीना बैठी हुई है। एक मर्तबा ज़ईफ़ा के करीब गई, जाने के बाद कहती है, ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है जो इस बच्ची से मोहब्बत कर रही है, इस बच्ची से प्यार कर रही है। ऐ ज़ईफ़ा, अरे करबला के बाद कोई ऐसा ना मिला जो हमसे मोहब्बत करे, जो इस बच्ची से रहम करे। ऐ ज़ईफ़ा तू कौन है। एक मर्तबा वो ज़ईफ़ा ने अपने निकाह उल्टे उलट कर कहती है, ऐ ज़ैनब, अरे तुमने ना पहचाना, मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा हूँ, मैं करबला की तुम्हारी माँ